مولا 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 مولا. حضرات محترم، جب آپ کو شہید کر دیا گیا، سارے جنازے رکھے ہوئے تھے، 11 محرم الحرام تھی، 10 تاریخ کے بعد جب 11 کی صبح ہوئی تو اللہ اکبر، تن سے جدا سر مبارک شہداء کے ایک طرف زمین کے اوپر تھے اور ایک طرف یزیدیوں کے تھے. جب دیکھا عمرو بن سعد نے تو پتہ ہے کیوں؟ وہ عمرو بن سعد جس نے کربلا کے اندر پہلا تیر چلایا تھا، یاد رکھنا نام، عمرو بن سعد وہ تھا جس نے پہلا تیر کربلا میں چلوایا. بولے چلا نواسے رسول پہ پہلا تیر، مجھے گواہ بنانا، پہلا تیر کربلا میں نے چلوایا ہے. اب ان کی جو والد ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اللہ اکبر کبیرہ کہ حضرت سعد آپ کے والد، آپ کا والد کا، آپ کے والد کا عالم کیا تھا؟ جب جنگ احد کا معاملہ تھا تو دشمنوں کے سامنے آپ کے والد تھے اور بیٹا امام حسین کا دشمن بن کے تھا. بیٹا آج لوگ کہہ دیتے ہیں بہت سارے، بولے مولویوں کی لڑائی بن گئی، بولے بھائی مفتیان اکرام کی لڑائی بن گئی، بولے یہ تو. میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، بیٹا کربلا میں امام حسین کے خلاف ہے اور والد محترم حضرت سعد رسول پاک کی جانب کھڑے ہیں، دشمن جنگ احد کے اندر تیر چلاتے ہیں تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دائیں کو آتے ہیں سرکار کے تیر نہ لگ جائے، کبھی بائیں کو آتے ہیں تیر نہ لگ جائے، کبھی دائیں کو کبھی بائیں کو. جب سرکار نے یہ عادت دیکھی تو کسی صحابی کو یہ لقب نہ ملا اور یہ جملہ نہ ملا جو لقب سرکار نے، جو جملہ سرکار نے حضرت سعد کو عطا فرمایا. جب آپ دائیں کو آتے بائیں کو آتے تیر لگتے جاتے، سرکار نے دیکھا میرے ساتھ تیرے پہ تیر لگ رہے ہیں، بولے یا رسول اللہ آپ تو ٹھیک ہیں، یا رسول اللہ آپ تو ٹھیک ہیں. جب تیر آنے لگے تو سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی یہ کہتا تھا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان. مدینے والے آقا نے فرمایا سعد تیرے پہ میرے ماں باپ قربان، میرے ماں باپ قربان. حضرات محترم، یہ ہے حضرت سعد، اتنے تیر کھاتے تھے آپ سرکار کی محبت کے اندر جنگ احد میں. اور بیٹا کہاں ہے؟ کربلا کے اندر امام حسین کے خلاف تیر چلا رہا ہے. حضرت حنظلہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت حنظلہ کی شادی کی رات تھی، اسی وقت آپ کو جس کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، فرشتوں نے آپ کو غسل دیا تھا. بیٹے سرکار کے ساتھ تھے حضرت حنظلہ اور باپ دشمنوں کے ساتھ تھے. تاریخ تو دیکھو آپ اسلام کی، جب جنازے رکھے اللہ اکبر، تن سے سر پاک جدا ہیں شہداء کربلا کے. 11 محرم الحرام کو اسی عمرو بن سعد نے کہا ان کے جنازے پڑے ہیں، پڑے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کہا جتنے بھی ہمارے قافلے کے لوگ ہیں سب کی جنازے کی نماز پڑھی جائے. سب کی جنازے کی نماز پڑھی گئی. کس کی؟ جس کو یزیدی کہا جاتا ہے. تاریخ اور فاتح لگوانے والے لوگوں ذکر کیا کرو، ذکر گھروں کے اندر یہ ذکر، یہ معمولی ذکر نہیں ہے، یہ نواسے رسول کا ذکر، نواسے رسول کا جس کو جنتوں کا سردار، جنت کے جوانوں کا سردار کہا گیا ہے. جب جنازے کی نماز ہوئی تو اللہ اکبر، سب جنازے ایسے ہی اللہ اکبر. کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں جب دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو، حضرت سکینہ، حضرت زینب، حضرت شیربانو، حضرت سغرا، امام زین العابدین سارے دیکھ رہے ہیں جو نبی کا خون ہے ان کے سر تن سے جدا ہیں اور سارے زمین کے اوپر اللہ اکبر. اور ادھر جنازوں کی نمازیں ہو رہی ہیں، جنازوں کی نماز ہو رہی ہے یزیدیوں کی. اللہ اکبر. پھر عمرو بن سعد نے حکم فرمایا چلو دیر مت کرو، ان کے سروں کو نیزوں پہ اٹھاؤ. معاذ اللہ، یہ نبی کا خون جس کو آپ اور ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک آل رسول جائے تو ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، نبی کے گھرانے والے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. وہ نبی کے گھرانے والوں کے سروں کو نیزوں پہ لایا گیا، نیزوں پہ اٹھایا گیا. وہ پاک دامن بیویاں، وہ پاک دامن خاتون، نبی کے گھرانے والوں کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالی گئی، ہتھکڑیاں ڈالی گئی، پیڑوں میں بیڑیاں ڈالی گئی. سب ڈال کر کے کہا چلو ان کو بھی لے کے چلو صاحب. پورے قافلے کو قیدی بنا کر کے جب چلا ہے قافلہ، خدا کی قسم وہ منظر کیسا ہوا. وہ قافلہ چلنے لگا، کہاں پہنچا؟ کربلا جو جگہ تھی وہاں سے کوفہ ابن زیاد جو گورنر تھا، پھر ابن زیاد نے بعد میں بھیجا تھا یزید کے پاس دمشق کے اندر جو حمص کا ایک علاقہ ہے وہاں. جب یہ قافلہ چلتا گیا، بیویاں روتی ہوئی جا رہی تھی، امام زین العابدین بیمار جا رہے تھے. بولے یا اللہ یہ کیسا وقت آ گیا، کیسا وقت آ گیا، یہ تیرے گھرانے والوں کے ساتھ یہ ہو رہا. نیزوں پہ سر
कैसा लगता हो वो मंजर, जरा आप तसव्वुर करो। नेज़ों पे सर हैं नबी के घराने वालों के, और ये यजीदी ये हुकूमत के लालच के अंदर, दौलत के लालच के अंदर नेज़ों को उठाए चल रहे थे। इब्ने ज़ियाद की ले गए बारगाह, ले जाने के बाद जब रखा, बड़े मुख्तसर अल्फाज में रखने के बाद में कहा आ गए ये लोग, ये कौन है, ये कौन है, पूछ लगा। कहा ये उनके शहजादे हैं, ये उनकी बेटी है, ये उनकी बहन है। कह रहे थे अच्छा, तो आपने सुना ना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर को नेज़े पे जब नीचे लिया गया आपका सर, तो उस जालिम ने छड़ी मारी आपके होंठ के ऊपर, ऐसे करके तश्त के अंदर सर को रखा गया, छड़ी मारी। बोले ये था जो हमारी बैत नहीं कर रहा था। एक बूढ़े गुलाम थे अहले बैत के, उन्होंने उठ करके कहा ए जालिम, मैं जानता हूं तेरी हुकूमत क्या है, ये नवासे रसूल के लबे मुबारक है, इस पे छड़ी मत मार, इस पे छड़ी मत मार। तो उस जालिम ने उनको भी सजा दिलवाई, बूढ़े होने के बावजूद सजा दिलवाई। इसके बाद ये काफिला मेरे दोस्तों कहां से, कूफा से, जो करना था उसने करा। कहा इस काफिले को ऐसे ही कैदी बना करके दमिश्क पहुंचाया जाए। वो काफिला दमिश्क पहुंचा, दमिश्क चलता गया काफिला सर नेज़ों के ऊपर। अब वो जुमला सुन ले लोग जिन्हों के घरों में ढोल बजते हैं, हवाला फकीर से ले, वो ढोल कहां से शुरू हुआ था वो सुने बाप। जब ये काफिला दमिश्क के लिए भेजा गया, कूफा से दमिश्क यजीद के पास, तो काफिला चला सर नेज़ों पर, और सारी बीवियां पाक दामन खातून रोती हुई जा रही थी, या अल्लाह ये कैसा जुल्म हो गया हमारे ऊपर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार चल रहा है। चलते चलते वो काफिला जब दमिश्क पहुंचने वाला था, दमिश्क का एक इलाका हमस बोलते, वहां पहुंचने के करीब था। एक सिहाबी रसूल थे, उनको खबर हुई कि नवासे रसूल को शहीद कर दिया गया। खबर उड़ गई चारों तरफ। वो दौड़ते हुए आए, दमिश्क के अंदर करीब में था कि ऐलान हो गया यजीद का, आ रहा है नवासे रसूल जिसने हमारी बैत नहीं की, हमारी बात नहीं मानी, उसको अल्लाह नेज़ों पे चढ़ाया है सरों। जब ऐलान हुआ था उस वक्त कि आ गया काफिला इसका, हुसैनी काफिला आ गया, कैदियों का काफिला आ गया, यहां तक अल्फाज हैं क्या उन चोर डाकू का काफिला आ गया। नबी के घराने वालों को चोर डाकू कहा जा रहा था, कौम से बचना था, बताना नहीं चाहते थे नबी का खून है। कहते थे चोर लोग थे, रास्ते में डाका डालते थे, इसलिए इनको कत्ल कर दिया गया। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। जब काफिला करीब पहुंचा तो ऐलान हुआ, पूरे ढोल ताशे बजा करके वेलकम के साथ इनको बुलाया जाए, क्योंकि हमने इनके सर तन से जुदा कर दिए हैं। इसलिए हमें फख्र है कि आज जो भी हुकूमत होगी वो यजीद की होगी, किसी और की नहीं होगी। अल्लाह अकबर। उस वक्त सबसे पहले वहां दमिश्क के अंदर ढोल और ताशे बजाए। दिल पे हाथ रखो, जरा सोचो कहां जा रही है हमारी कौम। आज के बच्चे निकलते हैं तो लोग कह रहे छोटा बच्चा है, बच्चा है, वो ला दिया दिल खुश करने के लिए। तो दिल खुश करने के लिए निस्बत कहां हो गई उसकी? उस वक्त दमिश्क के अंदर ये सर थे, कहां पर? अल्लाह अकबर। नेज़ों के अंदर बीवियां रो रही थी, ढोल ताशे बज रहे थे। तो वो सिहाबी आए। आज तो लोग एक एक टाल देकर बोले हज़रत छोटी बच्ची, अभी बोले हज़रत बच्ची की कपड़े कैसे? तो लोग कहते हैं छोटी बच्ची है, अभी छोटी बच्ची। अरे बच्ची को अगर से अभी से इतने कम कपड़े पहनाओगे तो बड़ी होकर कितने कम पड़ेंगे। अभी छोटा बच्चा ढोल लाने में क्या बुराई है, बोलो फला चीज लाने में क्या बुराई है। मेरे दोस्तों, ये काफिला जब दमिश्क पहुंच रहा था तो यजीदी जश्न मना रहे थे और ढोल ताशे बजा के जश्न मना रहे थे। अब दिल पे हाथ रख के फैसला करो, मुझे दलीलें देने की जरूरत नहीं है। एक भी हवाला गलत तो फकीर को चौराहे पे सजा। जब ये ढोल ताशे बजे थे, जब काफिला आया तो सिहाबी आए तो सिहाबी बहुत रोने लगे। नवाज रसूल को बोले इस सर को मुझे नीचे उतारो, इस सर को उतारो। तो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा था आप कौन है, इतना रोते क्यों हैं? ये तो यजीदियों का इलाका है, आप कौन है? बोले आप क्यों रोते हैं, हमें समझ में नहीं आता आपको रोना। अल्लाह अकबर। इनके दिल जल चुके थे, इतने पता ही चलता था अपना कौन है गैर कौन है। अल्लाह अकबर। ये कहने के बाद ज़ैनब ने जब कहा तो आपने कहा मैं नबी के दर का गुलाम हूं। ज़ैनब तुम्हें मालूम नहीं मेरे आका से मुझे कितनी मोहब्बत है, नवाज़े रसूल से कितनी मोहब्बत है। जब आपने कहा तो ज़ैनब ने कहा इतनी सी मेहरबानी कर दो, ये जो
ऊंचे उस पे सर रहे नेज़ों के ऊपर इमाम हुसैन का, इस सर को आगे कर दो और सबको पीछे कर दो ताकि हम पाक दामन बीवियों पर किसी की नजर न पड़े। ये लोग हुसैन के सर को देखते रहेंगे, हमारे से नजर हट जाएगी। जब इमाम हुसैन का सर जो था अल्लाह अकबर नेज़े में बीच में था, उसको आगे कर दिया गया, लोग उसी को देखते रहे। खुदा की कसम तारीख बताती है पूरे दमिश्क के अंदर कभी ऐसा नूर किसी ने न देखा जो नवाज़े रसूल के चेहरे मुबारक से निकल रहा। बोले ऐसा नूर निकल रहा था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुख्तसर ये कि वहां भी यजीदी ने जो करना था वो करा। कहा कि हाँ ये आ गया काफिला, बड़ी लंबी दास्तान होने के बाद में अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया उस काफिले को रखा गया। फिर बदतमीज़ियां की गई दरबार के अंदर। कहा ठीक है ये कौन है, ये कौन है? फिर पूछा गया ये उनकी बेटी है, ये उनके भाई है, ये उनकी बहन है, ये फलां है, ये फलां है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कहने के बाद में उस यजीद ने फिर वही बदतमीज़ी शुरू करी और करने के बाद में कहा चलिए आज जामा मस्जिद के अंदर खुतबा होगा और हम वहां बताएंगे कि देखो कैदियों को कैसे लाया जाता है, कैदियों को जो जुल्म करते हैं उसको कैसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। माशाअल्लाह जब जामा मस्जिद के अंदर हुआ तो बोले सबको लाया जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हुए थे। मेरे दोस्तों अल्लाह का इनाम देखिए आप। तो यजीद ने जब कहा ये सारे जो बचे हुए हैं इनको मस्जिद के अंदर लाया जाए, औरतों को यह छोड़ा जाए। जब जामा मस्जिद में लाया गया दमिश्क की, तो उस वक्त जो मिंबर था जामा मस्जिद का, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मौत आना मंजूर है। बोले क्यों? जुमला सुनने का। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मैं तेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा। आज तो मौलवियों का झगड़ा कहते हो, यानी मौलवी का झगड़ा। वो दाढ़ी वाले थे, जुब्बे भी पहनते थे, साफे भी पहनते थे, बांधते थे साफे भी, सब वही था लिबास। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा जो नबी के नवासे का नहीं वो हमारा नहीं, गर्दन जाए तो जाए, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन तेरे पीछे नमाज। लोगों में कहा यजीद ने अगर ये नहीं पढ़ेगा नमाज तो ये तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटा है हुसैन का। अब लोगों को मालूम हुआ ये नबी के खाने वाले हैं, एक एक करके बात फैलने लगी। यजीद ने कहा अब मौका अच्छा है। नहीं नहीं बोले मैंने कत्ल नहीं करवाया था, इब्ने ज़ियाद ने कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर। बोले फिर क्या? हुकूमत तो तुम्हारी थी, बड़ी लंबी तफसील, मुख्तसर ये इब्ने ज़ियाद कहने लगा, मेरे यजीद कहने लगा मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा। देखा माहौल, लोग मुझसे बदजन हो जाएंगे, उनको बचने के लिए कहने लगा। कहा नहीं जालिम सारा तेरा ही मामला था, हम जानते हैं। सकीना बोली तेरे ही मामला था, ज़ैनब बोली तेरे ही मामला था। मेरे काफले वाले कह रहे थे मैदान में यजीद का जो हुक्म हुआ वही कहा जाएगा, यजीद की बेत होगी वही कहा माना जाएगा। अल्लाह अकबर। जब देखा माहौल बिगड़ने लगा, खुदा का इनाम देखो इस घराने पर। यजीद ने भरे मजमे में कहा नमाज आज की जामा मस्जिद में यजीद नहीं पढ़ाएगा, हुसैन का बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन बोले इमाम ज़ैनुल आबिदीन पढ़ाएगा। खुदा की कसम तारीख गवाह है जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मिंबर पे खड़े होकर खुतबा पढ़ा था तो पूरे दमिश्क के लोग आंसू निकाल करके रो रहे थे। या अल्लाह ये क्या हो गया, या अल्लाह ये क्या हो गया, ये हुसैन पाक का लहर, ये हुसैन पाक का लहराना है, ये ज़ैनब है, ये सकीना है, ये सुगरा है, ये ज़ैनुल आबिदीन है। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खुतबा दिया और जब जैसे ही अजान हुई और जैसे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का लफ्ज आया तो आप पे कैफियत तारी हो गई। कैफियत तारी होने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मुझसे आगे नहीं बोला जाता, आपने नमाज अदा करी, नमाज आपके पीछे अदा की गई। ए मिल्लत इस्लाम के गैर मुसलमान, मुख्तसर अल्फाज में कह जाऊं कि खुदा की कसम ये काफिले को जब यहां से हो गया अब मदीना शरीफ भेजा गया। बड़े मुख्तसर अल्फाज में जब मदीना पहुंचा ये काफिला, पूरा वो काफिला कैदी बनकर के काफिला मदीना पहुंचा था तो मदीने के लोग आ करके पूछते थे नवाज़े रसूल कहाँ है, हुसैन पाक कहाँ है, हुसैन पाक कहाँ है, वो फला गुलाम कहाँ है, औलाद अकील कहाँ है, औलाद अली कहाँ है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया लोग पा करके प्यार से झूम झूम के पूछते थे हजरत कासिम भी तो गए थे आपके साथ, हजरत अली असगर भी तो गए थे आपके साथ, और सब भी हैं आपके साथ यहाँ पर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मदीने के अंदर बताती है तारीख अल्लाह अकबर क़यामत सुग़रा कायम हो गई थी जब मदीने के अंदर लोग पहुंचे थे। और ये इस जालिम ने फिर मदीने के ऊपर हमला करवाया और मदीने के अंदर हमले का मामला ये था जब इसी यजीद के हुक्म से इसने अपने आदमी को गवर्नर बना करके मदीना शरीफ भेजा। बोले कहा सारे मदीने वालों से कह दो जो यजीद की बैत करेगा वही रहेगा, वरना उसको भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अब्दुल्लाह बिन जुबैर और सियासी रसूल मौजूद थे उस वक्त मदीना शरीफ के अंदर। जब ये पहुंचे जालिम वफ़द के साथ में वहां पे जाके हमला किया। पूरी दुनिया जानती है आज हमारी मस्जिद में एक दिन नमाज बंद हो जाए तो एक मुस्लिम को बर्दाश्त नहीं होती। मदीना शरीफ के अंदर 3 दिन तक घोड़े मारने गए,
घोड़ों ने लीद करी, पेशाब करा उस सरकार के मिंबर मुबारक के ऊपर। मस्जिद नबी में 3 दिन नमाज नहीं हुई। एक सहाबी रसूल थे हजरत मुसय्यब रदियल्लाहु ताला अन्हु, वो दीवाने बन गए। उनको लोग मारते 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 कहते ये मजूब है, पागल है, इसको छोड़ दो। उन्होंने पागल कह करके छोड़ दिया। 3 दिन अजान नहीं हुई। तारीख ये कहती है, लेकिन हजरत सईद बिन मुसय्यब रदियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है, मैंने खुदा की कसम, रिवायत करते हैं, मैंने खुदा की कसम 5 वक्त मेरे कानों में आवाज सुनी कि रसूल पाक की कब्र अनवर से अजान की आवाज आ रही है, अजान की आवाज आ रही है। तीनों दिन आपने नमाज अदा करी। सिर्फ वाहिद गुलाम थे नबी के, हजरत सईद बिन मुसय्यब रदियल्लाहु ताला अन्हु। 5 वक्त लोग ये यजीदी काफले वाले कहते ये दीवाना आदमी छोड़ो 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 छोड़ो। इसको पता है अब शहीद कितने हुए? करबला की तारीख में आपने सुना खाली कि कितने 73 अफराद शहीद हुए जनिसा, लेकिन कभी मदीना शरीफ की भी तारीख को उठाया आपने? इधर नवासे रसूल थे, उधर नबी के गुलाम थे। इन जालिमों ने जब मदीना शरीफ पे हमला किया तो 3000 को ताबईन जिन्होंने सहाबी को देखा था, बड़े जलील कद्र ताबई, नबी को नहीं देखा था, सहाबियों को देखा था, वो 3000 तो उनको शहीद किया गया। और नबी के सहाबा पता है कितने शहीद हुए मदीना शरीफ के अंदर? अल्लाहु अकबर, 7000 सहाबा को मदीना शरीफ के अंदर शहीद किया गया था। 7000 सहाबा, 7000 ये और 3000 ताबईन, 10,000 लोगों को मदीना शरीफ के अंदर शहीद किया गया था। वहां से जंग चलती रही, बहुत लंबी तफसील। उसके बाद जंग चलते चलते किधर पहुंची? अब आ गए मक्का शरीफ के अंदर। 3 महीने तक मक्का शरीफ के अंदर हमले होते रहे। खाने काबे के गिलाफ को जला दिया गया। वो जो दुम्बा जन्नत से आया था, जो उसके सींग खाने काबे में बरकतन लगे हुए थे, ये जन्नत का दुम्बा है, उसके अंदर आग लगा दी गई। खाने काबे के अतराफ के लोगों को जुल्म सितम करके मारा गया। अल्लाह अकबर, ये काफिला ऐसे नहीं रुका था। यहाँ पर काबे के अंदर भी जुल्म सितम चलता रहा, जंग चलती रही, जंग चलती रही, जंग चलती रही। लेकिन बारे इस्लाम और बारे नवासे रसूल, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ए अजीरान मिल्लत इस्लामिया, कत्ले हुसैन असल में मर गई यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। क्या बात है रजा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल, इसमें हसन और हुसैन फूल तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा नूर का तू है, ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। जब चला था ये काफिला तो ऐसे काफिले में बाहर आई जिन लोगों ने सताया, जिन्होंने तीर मारा था। एक नाम का शख्स, बड़ी और तफसील बात में बयान करूंगा, लेकिन सुन लिए जालिमों का अंजाम क्या हुआ। जिसने तीर मारा उसे भी दौर के अंदर एक मुख्तार नाम का एक शख्स हुआ, जिसने बाद में नबुव्वत का दावा किया था। उसी शख्स ने जिसने तीर मारा था इमाम हुसैन को, उसको चौराहे के ऊपर तीर मार मार करके उसको मर गया। मरने के बाद उसकी लाश को जलाया गया। एक जालिम जिसने इमाम हुसैन का सर तन से जुदा किया था, कभी शिमर था, कभी खोली था, और तो सारे लोगों के नाम को मैं जाना नहीं चाहता हूं, मनुष्यों के नाम। अल्लाह अकबर, जब उसने तीर मारा, तलवार मारी, उसको पकड़ के मारा गया। चौराहे के ऊपर मार के कुत्तों को खिलाया गया। तारीख गवाह है, कुत्तों ने उसके टुकड़े करके खाए हैं। अल्लाह अकबर, जिन लोगों ने इमाम हुसैन की टोपियां उतारी थी, आपका लिबास उतारा था, ऐसी बीमारी लगी, ऐसी बीमारी लगी। किसी ने पूछा तुम्हारा चेहरा काला क्यों पड़ गया, तेरा चेहरा काला क्यों हो गया? वो कह रहे हैं मेरा चेहरा काला हो गया। बोले हाँ हाँ तेरा चेहरा काला हो गया। बोले काला हो गया, सब जाके देखा मेरा चेहरा काला कैसे हो गया? ख्वाब के अंदर देखा तो रसूल पाक सामने खड़े हैं और फरिश्ते उसका सर पकड़ पकड़ के भट्टी में डाल रहे हैं, भट्टी में डाल रहे हैं। बेदार हुआ, बोले मुझे तो ऐसा ख्वाब दिखा है कि कहा तू ही तो है जिसने नवासे रसूल को सताया था, तू ही तो है जिसने नवासे रसूल को सताया था। मेरे दोस्तों, कुत्तों को खिलाया गया, किसी का चेहरा काला हो गया, कोई कोड़ी बन गया, अल्लाह अकबर, कोई अंधा बन गया। एक तो वो जिसने अली असगर को तीर मारा था, हजरत अली असगर की जो तीर आके लगा था, जिस जालिम ने वो तीर मारा था, पता उसका हश्र क्या हुआ? आगे से गर्मी निकलती पेट के अंदर, पीछे से कमर में से ठंडक निकलती। लोग कहते ये कैसी बीमारी हो गई? कभी आगे से ठंडक, आगे से गर्मी, पीछे से ठंडक। आगे से जब गर्मी निकलती तो लोग बर्फ लाते, ठंडा पानी पेट पे लगाते। वो कहते मुझे सुकून नहीं मिल रहा, मुझे सुकून नहीं मिल रहा। पीछे ठंडक निकलती, लोग तो पीछे तैयार की, बोले मुझे सुकून नहीं मिल रहा। फिर प्यास प्यास कहने लगा, मुझे प्यास चाहिए। कहते प्यास लगी, मुझे ठंड लगती है, पीछे से आगे से गर्मी लगती है। अल्लाह अकबर, पागल हो गया। जब उसको पानी पिलाया गया, तारीख बताती है 1 मटका पिलाया, प्यास न बुझी, 2 मटके पिलाया, प्यास न बुझी, तीसरा मटका पिला रहा तो पेट का वही मर गया। बोले ये है सताने वालों का अंजाम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए फकीर कहता है तुमसे, अरे जो औलादे रसूल है, चाहे वो पिलग्राम शरीफ का आले रसूल हो, चाहे वो कालपी शरीफ का आले रसूल हो, चाहे वो किचोटा शरीफ का आले रसूल हो, चाहे वो महारेरा मुकद्दसा का आले रसूल हो, चाहे वो मसूली का सैयद गुलजारे मिल्लत हो, खुदा की कसम अपना हाथ सादात के हाथ में दे दो, हमारी जन्नत के लिए
یہ کافی ہے، یہ بولے عزیزان ملت اسلامیہ، یہی بخشش کا ذریعہ ہے۔ عمل پہ نسبت کرو، عمل آج ہے کل کا پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے بولنے میں کوئی غلطی ہو اس کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔